myself Prabhat Singh, Assistant Professor from ABS Engineering College, Ghaziabad. Today I will discuss the topic greedy algorithms. The basic outlines of today's lecture is that what is a greedy algorithm, what are the basic properties that are followed by the greedy algorithms, and I will discuss some of the basic examples that can be solved with the help of greedy approaches. Now, what is a greedy algorithm? In design and analysis of algorithm subject, we have discussed about various approaches. First is the recursive approach, then greedy approach, then dynamic programming approach. Now, what exactly the greedy approach is? Now, what exactly the meaning of greedy algorithm? As we know that the greedy means what? Greedy is a kind of a solution that seems best at a particular moment, but it is not necessary that the solution will always be optimal. That is, in greedy method, we have to find out the best method or option out of many present ways. This method may or may not provide you an optimal solution. मतलब अगर सिंपल बात करें कि ग्रीडी एल्गोरिथम है क्या? ग्रीडी मतलब कोई भी एक प्रॉब्लम मुझे गिवन है, उस पर मैं ग्रीडी अप्रोच लगा रहा हूं. Greedy approach will not necessarily give you an optimal solution. That approach may provide you an optimal solution or may not provide you an optimal solution. That is, अगर मैं greedy algorithm की बात करूं तो मैं एक पहला पॉइंट तो इससे यह समझ पाता हूं कि greedy algorithm बहुत सारे सॉल्यूशंस के थ्रू एक सॉल्यूशन आता है, उस सॉल्यूशन से हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल भी सकता है या नहीं भी. Greedy algorithm solves problem by making the choice that seems best at a particular moment. This is what the meaning of greedy. मतलब जो मुझे एक particular movement पे best लगेगा वो मेरा एक solution होगा, but जरूरी नहीं है कि वो solution आपको एक efficient solution या optimal solution दे. Agreed? तो some issues have no efficient solution, but a greedy algorithm may provide a solution that is close to an optimal. Agreed? तो मतलब मैं यहां से अगर समझूं तो greedy algorithm का डायनेमिक से अगर रेफरेंस में देखूं तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग will always provide you an optimal solution, but in greedy a solution may be optimal as well as it is very close to optimal. It is not necessary that greedy will provide you optimal solution in all possible cases. Agreed? क्योंकि greedy में क्या है कि हम अपने बेसिस पे जो सॉल्यूशन मुझे बेस्ट दिख रही है पर्टिकुलर मूवमेंट पे मैं उसे पिक कर ले रहा हूं. जरूरी तो नहीं है कि वो सॉल्यूशन मुझे ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे या ऑप्टिमल नहीं दे. तो हम यहां से ये कंक्लूड करते हैं कि ग्रीडी एल्गोरिथम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को डिटरमाइन करने में यूज होती है, मे प्रोवाइड एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन और मे नॉट प्रोवाइड एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और इसमें हम सॉल्यूशन वो पिक करते हैं दैट सीम्स बेस्ट एट अ पर्टिकुलर मूवमेंट. एग्रीड? ये तीन टर्म्स को हमें ध्यान रखना है. ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए यूज करते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी करते थे. डायनेमिक प्रोग्रामिंग हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन देता है, greedy may or may not give the optimal solution, and the biggest reason why greedy may or may not give the optimal solution is that in this we makes the greedy choices. Or what are the greedy choices? That seems best at a particular moment to me. These are the greedy choices. Now, what are the two basic properties that greedy algorithm must follow? A greedy algorithm works if a problem exhibits the following properties. अगर किसी प्रॉब्लम में ये दो प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं तो ग्रीडी एल्गोरिथम विल वर्क. फर्स्ट इज द ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर. नाउ व्हाट इज ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर? ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर इज अ सबस्ट्रक्चर दैट इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन कंटेन्स ऑप्टिमल सब सॉल्यूशन. मतलब क्या है कि हमारे पास एक लार्ज प्रॉब्लम है, उस लार्ज प्रॉब्लम को जब मैं स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड करूंगा तो उन स्मॉल प्रॉब्लम्स के जो ऑप्टिमल सब सॉल्यूशन आए होंगे उनको कंबाइन करके लार्ज प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन डिफाइन करूंगा. दैट इज
optimal if optimal solutions contain optimal subsolutions, then the problem exhibits a optimal substructure property. Agreed? अगर क्या नाम है एक स्मॉलर प्रॉब्लम्स के ऑप्टिमल सब सॉल्यूशंस निकालेंगे तो लार्जर प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा. Now, what is a greedy choice property? That is the second property. Greedy choice is basically the solution that seems best at a particular moment. That is, we can say that in other words, an optimal solution can be obtained by making the greedy choices. जो मुझे उस समय पर पर्टिकुलर मूवमेंट पे जो सॉल्यूशन मुझे ठीक लग रहा है उसको मैं पिक कर लूंगा बाय माय ग्रीडी चॉइस. एग्रीड? सो दो प्रॉपर्टी मुझे यहां पे फॉलो करनी है, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर एंड ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी. एग्रीड? अगर मैं डायनेमिक की बात करूं तो यहां पे ग्रीडी चॉइस की जगह वो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम होता, और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम की वजह से उसमें रिकर्शन कॉल होता, और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम की वजह से ही उस प्रॉब्लम का एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन डिफाइन होने की गारंटी होती. क्योंकि वहां पे एक प्रॉब्लम एक ही बार सॉल्व होने की कंस्ट्रेंट है, और जब मेरा एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाता हर लेवल पे ऑप्टिमल कैलकुलेट करते हुए, तो यहां के कंपैरेटिव जहां मैं ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम का कंस्ट्रेंट खत्म कर रहा हूं, यहां पे मैं ओवरलैपिंग की जगह ग्रीडी चॉइस कर रहा हूं, जिस वजह से मेरा सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो भी सकता है या नहीं भी. तो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग मेरी अभी तक है, अगर उसको गो थ्रू करूं, व्हाट इज ग्रीडी? ग्रीडी चॉइस इज बेसिकली जो चॉइस मुझे एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे सही लग रही है, दैट इज ग्रीडी चॉइस. दिस इज द ग्रीडी एल्गोरिथम. दूसरी बात, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स पे ग्रीडी एल्गोरिथम्स लगती हैं. तीसरी बात, ये आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे भी सकता है या नहीं भी. नहीं देने का सबसे बिगेस्ट रीजन ग्रीडी चॉइस है, क्योंकि ग्रीडी चॉइस कभी आपके हिट एंड ट्रायल करके ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे भी सकती है और कभी नहीं भी. दो बेसिक प्रॉपर्टीज फॉलो करता, ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर और ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टीज. ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर क्या? लार्ज प्रॉब्लम को स्मॉल प्रॉब्लम्स में तोड़ना है, और इन स्मॉल प्रॉब्लम्स के स्मॉल सब सॉल्यूशंस को ऑब्टेन करते हुए जो ऑप्टिमल होंगे उन्हें बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है. दैट इज ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर. एंड ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी क्या है? जो मुझे चॉइस एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे बेस्ट लग रही है. अब क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? अगर मैं देखूं, सबसे पहला एग्जाम्पल एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम. वन लाइन में अगर बात करूं, क्या होगा? एक रिसोर्स है, उसके अंदर कुछ एक्टिविटीज हैं, और उस रिसोर्स के उस पर्टिकुलर रिसोर्स में वो सारी एक्टिविटीज को शेड्यूल कराना है. एग्रीड? एक रिसोर्स में सारी एक्टिविटीज को शेड्यूल कराना है और रिटर्न करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिविटीज शेड्यूल हो रही हो. हफमैन कोडिंग क्या है? दिस इज बेसिकली अ डेटा कंप्रेशन और डेटा एनकोडिंग अप्रोच. दैट इज, फिक्स लेंथ कोड से हम वेरिएबल लेंथ कोड कैसे कर सकते हैं, दिस वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ हफमैन एनकोडिंग. नेक्स्ट इज फ्रैक्शनल नैपसैक. This is the knapsack problem which we have already discussed in 01 knapsack, that is dynamic programming. We will discuss about what exactly the variation in 01 knapsack with fractional knapsack. अगर मैं सिंपल बात करूं, फ्रैक्शन मतलब यहां कि हम आइटम्स को पार्शली भी पिक कर सकते हैं. एग्रीड? टास्क एंड जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम. दिस इज बेसिकली क्या? एक प्रोसेसर है, उस पर मुझे कुछ टास्क को शेड्यूल कराना है. एग्रीड? और मुझे जो टास्क शेड्यूल होंगे, शेड्यूल होने से जो प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट रिटर्न करना, और वो प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए. आई रिपीट कि मेरे पास एक सिंगल प्रोसेसर है, उस प्रोसेसर पे मुझे कुछ टास्क को शेड्यूल कराना है, और उन टास्क को शेड्यूल करते समय जो मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा वो रिटर्न करना है, या मिनिमम पेनल्टी या मैक्सिमम पेनल्टी. एग्रीड? दिस इज टास्क शेड्यूलिंग. Now, traveling salesman, we have to move from one city to one city, visiting all the cities and then come back to the same city. We have to return the minimum cost in that. Agreed? मतलब एक सिटी से चल के सारी सिटीज घूम के आके वापस उसी सिटी पे आना, और जो मिनिमम कॉस्ट लगी होगी, दैट इज ट्रेवलिंग सेल्समैन. Now, what is the minimum spanning tree problem? This is basically a spanning tree. Spanning tree means what?
Prince algorithm, Kruskal algorithm, these all follows the greedy approach. Agreed? So first we will discuss about the activity selection problem. स्टेटमेंट देखने से पहले बस इतना ध्यान रखना है कि मेरे पास एक रिसोर्स है. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ टाइम टेबल और एक लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ लेक्चर थिएटर. अब उस लेक्चर थिएटर में मुझे पूरे दिन के लेक्चर्स को शेड्यूल करना है और मुझे रिटर्न करना है कि मैक्सिमम लेक्चर्स विल बी शेड्यूल्ड इन अ गिवन डे विदाउट एनी क्लैशिंग. अब एक चीज सोचें कि एक लेक्चर थिएटर में अगर मुझे कुछ n नंबर ऑफ लेक्चर्स को शेड्यूल करना है तो बिगेस्ट चीज मुझे क्या चाहिए? अगर क्लैशिंग ना हो, मतलब वो दोनों कंपैटिबल एक्टिविटीज हो, क्या होना चाहिए कि भैया पहले का जो फिनिशिंग टाइम है वो दूसरे के स्टार्टिंग टाइम के बराबर हो या दूसरे का स्टार्टिंग टाइम पहले के फिनिशिंग टाइम से बड़ा हो. एग्रीड है? सिंपल. तो सिंपल हम क्या लेके चलते हैं? सपोज देयर इज अ सेट एस जिसके अंदर मेरे पास n एक्टिविटीज हैं. द एक्टिविटी शेयर अ रिसोर्स विच कैन बी यूज बाय ओनली वन एक्टिविटी एट अ टाइम. दैट कैन बी अ टेनिस कोर्ट और अ लेक्चर हॉल. एग्रीड? वी आर टेकन एन एग्जांपल ऑफ अ लेक्चर हॉल. तो बेसिकली इन तीन स्टेटमेंट से हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि एक रिसोर्स है लेक्चर हॉल और मेरे पास n एक्टिविटीज है. n एक्टिविटीज मतलब n लेक्चर्स को शेड्यूल करना है. अब ईच एक्टिविटी i हैज अ स्टार्ट टाइम s ऑफ i और उसका कोई फिनिशिंग टाइम भी एग्जिस्ट करता है. हर एक्टिविटी का स्टार्ट टाइम होगा और हर एक्टिविटी का फिनिशिंग टाइम. बेसिकली क्या? एक लेक्चर हॉल, उस लेक्चर हॉल में कुछ लेक्चर्स को शेड्यूल करना है और हर लेक्चर का एक स्टार्ट टाइम होगा 9 बजे. मान लो पहले का खत्म हो रहा है 10 बजे, दूसरे का 10 बजे शुरू हो रहा है और खत्म हो रहा है 11 बजे. तो सिंपल ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो दूसरा लेक्चर शुरू होगा उसका स्टार्टिंग टाइम पहले लेक्चर के फिनिशिंग टाइम के या तो बराबर होगा या फिर क्या होगा? बड़ा होगा. तभी मेरी वो दो एक्टिविटीज आपस में ओवरलैप नहीं करेंगी. दैट इज एक्टिविटीज i and j आर कंपैटिबल इफ द इंटरवल्स s of i और f of i and s of j and f of j do not overlap each other. मतलब अगर उनके आपस में ओवरलैपिंग नहीं होगी तो सिंपली हम ये चीज असाइन कर सकते हैं. मतलब क्या? s of j ग्रेटर देन इक्वल टू f of i है तभी हमारी दो एक्टिविटीज आपस में शेड्यूल हो सकती है विदाउट एनी ओवरलैपिंग. एग्रीड? s of j क्या है? s of j क्या है? j इज व्हाट? द स्टार्टिंग टाइम ऑफ सेकेंड एक्टिविटी और f of i क्या है? फिनिशिंग टाइम ऑफ द फर्स्ट एक्टिविटी. वो बड़ा और बराबर होना चाहिए. अब ठीक है, हमने ये कंस्ट्रेंट लगा लिया, लेक्चर हॉल है, n एक्टिविटीज शेड्यूल करनी है. एक्टिविटीज किस तरह से शेड्यूल होंगी? जो ओवरलैपिंग ना हो. तो अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? एक एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम सेलेक्ट्स अ मैक्सिमम साइज सेट ऑफ अ म्यूचुअल कंपैटिबल एक्टिविटीज. बेसिकली क्या है? मान लो मेरे पास 10 एक्टिविटीज हैं, ड्यूरेशन है 8 घंटे, सुबह 9 से लेके 5 तक एक लेक्चर रूम में, और उनके सबके लेक्चर्स लेने के टाइमिंग है प्रोफेसर्स के कि मैं इस समय लूंगा, मैं इस समय लूंगा, मैं इस समय लूंगा, मैं इस समय लूंगा. मुझे मैक्सिमम साइज सेट ऑफ म्यूचुअल कंपैटिबल एक्टिविटीज मतलब मुझे जो उस पर्टिकुलर रिसोर्सेज में मैक्सिमम नंबर ऑफ लेक्चर शेड्यूल हो सकते हैं विद इन द टाइम फ्रेम वो रिटर्न करना है. एग्रीड है भाई? सिंपली एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि मैं 9 से 10 लेक्चर ले रहा हूं, कोई 12 से 1 ले रहा है, कोई 3 से 5 ले रहा है, खत्म 3 लेक्चर. दिस इज नॉट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन. एग्रीड? That's why which we say that there must follow the optimal substructure property. There can be multiple solutions, but we have to return a solution which will provide us a maximum size set of mutual compatible activities. मतलब उन 10 एक्टिविटीज जो मुझे 8 घंटे के अंदर फ्रेम करनी है तो मैं ज्यादा से ज्यादा करूं, जैसे 6 या 7. 2 और 3 is not a possible solution. Agreed? अब इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं और इसकी एल्गोरिथम देखते हैं. अब ग्रीडी एक्टिविटी सेलेक्टर, S इज द स्टार्टिंग टाइम एंड S इज द फिनिशिंग टाइम.
सबसे पहला स्टेप n में मैंने असाइन कर दिया, n इज व्हाट, n इज डिस्क्राइबिंग द लेंथ ऑफ व्हाट, कितने मेरे एलिमेंट्स हैं, एग्रीड। और सिंपल अगर इसका एग्जांपल यहां पे देखूं मैं, अगर इस चीज को यहां पे अगर मैं देख रहा हूं मेरे पास 10 एक्टिविटीज हैं, उनके स्टार्ट टाइम और फिनिशिंग टाइम गिवन है, और एस में मुझे A1 से A10 तक एक्टिविटीज डिस्क्राइब कर रखी हैं, और हर एक्टिविटी का कुछ स्टार्ट टाइम और कुछ फिनिशिंग टाइम मुझे गिवन है, एग्रीड। दिस इज द प्रोबेबल क्वेश्चन। और कंप्यूट अ शेड्यूल वेयर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एक्टिविटीज टेक प्लेस, मतलब मैक्सिमम साइज ऑफ म्यूचुअल कंपैटिबल एक्टिविटीज। ये मुझे कुछ एक एग्जांपल गिवन है। अब इसके हिसाब से मेरी एल्गोरिथम कैसे फ्रेम हो रही है। अब सबसे बात एक चीज देखें कि मुझे 10 एक्टिविटी गिवन है, उनके स्टार्ट टाइम गिवन है, उनके फिनिशिंग टाइम गिवन है। सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सारी एक्टिविटीज को अरेंज करना चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फिनिशिंग टाइम। क्योंकि है क्या कि भैया जब एस ऑफ जे ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ आई होगा तभी दो एक्टिविटी एक साथ आ सकती है, एग्रीड है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन 10 एक्टिविटीज को अरेंज करूंगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ देयर फिनिशिंग टाइम। जो ये फिनिशिंग टाइम है उसके हिसाब से इन एक्टिविटीज को मैं अरेंज कर दूंगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इससे मुझे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि ये एक्टिविटी खत्म हुई, ये एक्टिविटी शुरू होने का टाइम, ये एक्टिविटी खत्म होने का टाइम, ये एक्टिविटी शुरू होने का टाइम। दिस इज बेसिकली द ग्रीडी चॉइस विच आई एम मेकिंग हियर, एग्रीड। मतलब सबसे पहले मैंने क्या करा, एक्टिविटीज गिवन है, स्टार्ट टाइम गिवन है, फिनिशिंग टाइम गिवन है, मैं क्या करूंगा, मुझे चाहिए क्या, दूसरी एक्टिविटी तो तभी शेड्यूल होगी जब पहली खत्म होगी। तो मैंने क्या करा, सारी एक्टिविटीज को अरेंज कर दिया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फिनिशिंग टाइम, एग्रीड। ये मेरे पास निकल के आया। अब इसकी एल्गोरिथम को देख लेते हैं। एन में मेरे पास मान लो रिटर्न हो गया 10, और ए मैंने पहली एक्टिविटी को पिक कर लिया। सीधी सी बात है, जब मैंने उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फिनिशिंग टाइम में शेड्यूल करा लिया तो पहली एक्टिविटी तो मेरी शेड्यूल होनी ही है, एग्रीड। तो मैंने पहली एक्टिविटी को पिक कर लिया और एक आई वेरिएबल लेके इनिशियलाइज कर दिया 1 से, ठीक है। अब मैं यहां 2 वेरिएबल लेके चल रहा हूं, आई या जे ले लूं या आई या एम, और एक लूप चलाया 2 से लेके रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज तक, ठीक है। और अब मैं यहां क्या कर रहा हूं, एक इफ कंडीशन में एस ऑफ एम को ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ आई कह रहा हूं, वही एस ऑफ जे वाली बात, एग्रीड। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एस ऑफ 2 नाम की चीज को कंपेयर कर रहा हूं एफ ऑफ 1, एग्रीड। अब देखें एस ऑफ 2 और एफ ऑफ 1 क्या, एस ऑफ 2 क्या है 3 और एफ ऑफ 1 क्या है 3। अगर ऐसा है, दिस इज ट्रू, तो मैं क्या करूंगा, ए में असाइन हो जाएगा ए यूनियन व्हाट, ए ऑफ एम, ए ऑफ एम व्हाट, ए ऑफ 2, मतलब ए यूनियन A2, मतलब A2 वाली एक्टिविटी भी मेरी इसमें आ जाएगी। और उसके बाद मैं आई को अपडेट कर दूंगा किससे, एम को, क्योंकि अगली बार दूसरी एक्टिविटी का फिनिशिंग टाइम कंपेयर होगा तीसरी एक्टिविटी के स्टार्टिंग टाइम से, मतलब एस ऑफ 3 कंपेयर होगा एफ ऑफ 2 से, और जैसे ही एस ऑफ 3 एफ ऑफ 2 से कंपेयर होगा तो मेरा लूप में फॉल्स रिटर्न होगा, क्योंकि फिनिशिंग टाइम मेरा बड़ा आ रहा होगा कंपैरेटिव टू स्टार्टिंग टाइम, एग्रीड। तो ये मेरी एक एल्गोरिथम चल रही है। इस एल्गोरिथम को चलने में अगर आप ध्यान दें तो क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहला स्टेप मैंने क्या कर दिया कि मैंने फिनिशिंग ऑर्डर के हिसाब से सारी एक्टिविटीज को क्या करा, सारे एक्टिविटीज को फिनिशिंग टाइम के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। भाई असेंडिंग ऑर्डर में सारी एक्टिविटीज को अरेंज करा तो क्या लगाया होगा, सॉर्टिंग, और सॉर्टिंग लगाई होगी तो जनरल केस की बात करूं तो एन लॉग एन तो टाइम लगाया होगा ना उसे अरेंज करने में, तो एन लॉग एन टाइम तो मेरा किससे आया, जो सॉर्टिंग मैंने वहां पे लगाई है, एग्रीड। अब इसके बाद ये वाला लूप मेरा कितनी बार चल रहा है, अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरा वाला लूप कितनी बार चल रहा है, n-1 टाइम्स। तो n log n प्लस n-1 विल रिटर्न n log n। तो ये मेरी कॉम्प्लेक्सिटी हो रही होगी इस ग्रीडी एल्गोरिथम की। एग्जाम्पल देख लेते हैं।
सिंपल मैंने इस एग्जांपल को लिया, इस हिसाब से इसको फ्रेम कर लिया, और इस हिसाब से फ्रेम करने के बाद मैंने इसमें क्या दिखाया कि A1 एक्टिविटी हुई, A3 हुई, A2 नहीं हो पाएगी, A4 हो जाएगी क्योंकि 4 और 4 कंपेयर हुए होंगे आपस में। A4 हो जाने के बाद A6 और A5 ये दो एक्टिविटी अगर देखूं, अगर A6 होती है, अगर A6 एक्टिविटी यहां पे शेड्यूल हो जाती है तो A6 एक्टिविटी होने के बाद नेक्स्ट A7 होगी, नेक्स्ट A7 होने के बाद A9 होगी, A9 होने के बाद A10 होगी। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 एक्टिविटीज मेरी शेड्यूल हो रही हैं। एग्रीड। और अगर दूसरा सॉल्यूशन देखें यहां पे, अगर मैं ये कहता कि ये A4 के बाद A6 की जगह A5 हो जाए, तो अगर A5 होती फिर उसके बाद मेरी क्या हो रही होती, नेक्स्ट एक्टिविटी A9, और इसके बाद मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी ये, तो उसके थ्रू मुझे क्या सॉल्यूशन मिल रहा होता, 6। तो बेसिकली जो मैंने ग्रीडी चॉइस करी है उसमें वो एक्टिविटीज अपने आप असेंडिंग ऑर्डर में आ गई, और असेंडिंग ऑर्डर में आ जाने से वो एक्टिविटी या वो सॉल्यूशन रिटर्न हो जाएगा जो मुझे उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे बेस्ट दिख रहा है। तो बेसिकली देखें, A1 A3 शेड्यूल हुई, A4 शेड्यूल, A6 A7 A9 एंड A10। These are the 7 activities which are scheduled. Agreed? This is activity selection problem. We have to represent this in this way. Agreed? Now, next is the Huffman encoding. Now, what is the Huffman encoding? The data can be encoded efficiently using the Huffman code. This is basically a compressing of data. Huffman greedy algorithm uses a table of frequencies of occurrences of each character to build up an optional way of representing each character in a binary string. Basically क्या है, Huffman encoding को हम यूज करते हैं फॉर द डेटा कंप्रेशन, और इसमें अगर हम बात करें तो हम कहीं ना कहीं फिक्स लेंथ की एनकोडिंग को वेरिएबल लेंथ की एनकोडिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं यूजिंग दिस एल्गोरिथम। ठीक है, सपोज वी हैव 10 to the power 5 कैरेक्टर्स इन अ डेटा फाइल, नॉर्मल स्टोरेज विल बी 8 बिट्स पर कैरेक्टर, देन दिस इज द साइज ऑफ अ गिवन फाइल। नाउ वी हैव टू कंप्रेस दिस डेटा. Now, how we will compress the data? We will compress the data by the two ways. That is the fixed length encoding and the variable length encoding. Now, what is a fixed length encode? Each letter represented by an equal number of bits. With fixed length code, at least 3 bits per character. अब fixed length क्या है? हर लेटर के equal number of bits होंगे, और fixed length code पे 3 bits per character होंगी। तो सिंपल मैंने क्या कहा, अगर 6 कैरेक्टर थे ABC, तो A की 000 001 010 011 100 101. For a file with 10 to the power 5 characters, we need what? 3 bits into 10 to the power 5 bits for its storage. But we have to further compress it with the help of what? Variable length coding. It can be considered better than a fixed length code by giving many characters short codes words and infrequent character length code words. That is, fixed length और variable length में क्या फर्क है, वहां पे equal number of bits होते हैं, यहाँ पे unequal bits हो सकते हैं। जैसे A सिंगल कैरेक्टर या ट्रिपल, इस तरह से हमने असाइन करा और इसके बेसिस पे हमने नंबर ऑफ बिट्स को कैलकुलेट कर लिया, जो कि 2.24 इंटू 10 टू द पावर 5 आया। इसके कंपैरेटिव दैट इज लेसर देन। So, what will be the algorithm of this? How we solve it with the help of an example. We will see this. This is the algorithm of Huffman encoding. We will discuss this example. Now, let us take an example that there are A, B, C, D, E and F. और इनकी फ्रीक्वेंसी है ये। तो सबसे पहले हमने क्या करा, Huffman C मीन्स कैरेक्टर, और n में डिफाइन कर दी लेंथ, n इज व्हाट 6 नाउ, और q क्या है, एक प्रायोरिटी q असाइन करी जिसमें हम सारे कैरेक्टर्स को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अब एक लूप चलाया i की वैल्यू 1 से लेके n-1, 1 से लेके n-1 ही क्यों, 1 से लेके 6 चल सकता है ये भाई, एक एक को मर्ज करेंगे ना, पहले 2 मिनिमम पकड़े
उन्हें मर्ज कर दिया, फिर अगला नेक्स्ट मिनिमम उसके साथ मर्ज, तो कहीं ना कहीं एक माइनस तक चलेगा। अब 1 से लेके 5 तक चलना है, तो जब ये i इक्वल टू 1 है तो हमने एक नोड एलोकेट करी z, सिर्फ मेमोरी एलोकेशन थ्रू दिस स्टेप, एग्रीड। z एलोकेट करी। अब मैंने अपने इस क्यू को, क्योंकि मैं इनको क्या है एक प्रायोरिटी क्यू में स्टोर कर चुका हूं इनकी फ्रीक्वेंसीज को, अब मैंने अपनी क्यू के अंदर सबसे मिनिमम को एक्सट्रैक्ट करा। सबसे मिनिमम कौन सा मिला मुझे? ए, जिसकी क्या फ्रीक्वेंसी है 5, ठीक है। जब ए मिला तो वो इसके लेफ्ट में आएगा, और बी मिला नेक्स्ट वाला, मतलब ये सबसे कम, और इससे जस्ट बड़ा वाले को मैंने, इसको मैंने एक्स कहा, और इसके इधर आ गया बी, इसको मैंने वाई कह दिया, एग्रीड। और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है 5, इसकी 9, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को सम करके इसकी फ्रीक्वेंसी को असाइन करा और इंसर्ट कर दिया यहां पे, ये हो गया 14, एग्रीड। तो ये क्या हो जाएगा 14, 5 इधर, 9 इधर, एग्रीड। अब नेक्स्ट चीज क्या होगी, जब मैं इसे इंसर्ट कर दूंगा तो ये लूप मेरा वापस घूम के जाएगा यहीं पे। अब i की वैल्यू 2 होगी। जैसे ही i की वैल्यू 2 होगी, 2 हो जाने के बाद फिर से z बनेगा कुछ, z बनने का मेमोरी एलोकेशन होगा, फिर से ये वाली चीज भी हमारी क्यू में आ चुकी होगी 14। अब 14, 12, 13, 16 और 45, इन 5 के अंदर मिनिमम ढूंढा गया होगा। मिनिमम क्या आया होगा 12, नेक्स्ट मिनिमम क्या आया होगा 13, तो 12 13 मिलके क्या बन गए होंगे, 12 लेफ्ट में, 13 इधर, और इसकी फ्रीक्वेंसी जुड़ के 25, एग्रीड। अब ये 25 हो गया होगा, और फिर मेरे पास क्यू में क्या क्या होगा कंपेयर करने के लिए, 14, 25, 16 एंड 45, एग्रीड। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ होगा, नेक्स्ट स्टेप में फिर हमने देखा होगा जब i इक्वल टू 3 चला तो नेक्स्ट दो मिनिमम कौन है, 14 एंड 16। तो 16 आया होगा, तो यहां पे इसके राइट में आके ये मर्ज होके 30 हो गए होंगे, और फिर क्या हो गया होगा 30, 25 एंड 45, और फिर इसके अंदर हमने एक्सट्रैक्ट मिन चलाया होगा, तो मिनिमम क्या निकल गया होगा 25 और 30, ये दोनों मिलके क्या बन गए होंगे 25 इधर, यहां से 30 होके दिस इज 55, एग्रीड। अब जब 55 हो गया होगा तो 45 एंड 55 मिलके इज व्हाट, देन इट इज 100। ये अप्रोच मेरा फॉलो हुआ होगा। बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं, पहले n डिफाइन कर दी, क्या कितने कैरेक्टर्स है उसके हिसाब से, प्रायोरिटी क्यू बना दी जिसमें हम मिनिमम को एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे, लूप चला दिया n-1 तक, एक नोड का मेमोरी एलोकेशन करा, फिर क्यू के अंदर से मिनिमम को एक्सट्रैक्ट करा, फिर नेक्स्ट मिनिमम को लिया, जो सबसे मिनिमम है वो लेफ्ट चाइल्ड, नेक्स्ट मिनिमम को राइट चाइल्ड, दोनों की फ्रीक्वेंसी को सम करके जेड की फ्रीक्वेंसी और जेड की फ्रीक्वेंसी सम ऐड करके फिर उसको इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट कर देंगे तो हमारा सिंपल यही चीज बार बार रिपीट हो रही होगी, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी n log n, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हम इसमें सॉर्टिंग कॉल कर रहे हैं, जो सबसे छोटे हैं पहले उनको पिक करते हुए चल रहे हैं, एग्रीड। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, वही सेम एग्जाम्पल ये था। सबसे पहले मुझे क्या करना था, बिल्ड अ मिन हीप दैट कंटेन्स 6 नोड वेयर ईच नोड रिप्रेजेंट रूट ऑफ द ट्री विद अ सिंगल नोड, एग्रीड। इसके बाद मैंने क्या किया कि जब मेरे पास मिनिमम 5 और 9 है तो 14 इनका सम हुआ, तो 14, 5 और 9, और यहां पे मैंने इन कैरेक्टर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करा। अब मुझे क्या है, इनमें मिनिमम पिक करना है, तो नेक्स्ट क्या होगा 12 और 13, 12 13 पिक करके दिस इज 25, और मेरे पास टेबल क्या रिटर्न हो गई 14, 16, 25 एंड 45। अब इन दोनों में नेक्स्ट टू मिनिमम्स क्या है 14 एंड 16, तो 14 वाला लेफ्ट में हो गया, ये 16, देन इट इज 30। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या हो गया होगा 30 के बाद यहां पे अगर देखूं तो 30, 25 एंड 45, 30, 25 एंड 45। अब 30 और 25 ये वाला पार्ट इधर, 25 वाला पार्ट इधर, और ये मिलके 55। अब 55 और 45, 45 इधर, 55 इधर, एग्रीड। इस तरह से मैंने इसकी वेरिएबल लेंथ एनकोड करनी है। अभी तो मैंने इसका ट्री बनाया।
अब एनकोडिंग कैसे, सिंपल ये बन गया, लेफ्ट में 0, राइट में 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1। जो मैंने सिंपल क्या, लेफ्ट वाले को 0 असाइन करा, राइट वाले को 1 असाइन करा, और सिंपल ट्री में असाइन करते चले गए। ये मेरे पास कोड्स निकल के आ गए, जिसके थ्रू मैंने इसको ये बोल दिया कि इस तरह से इसका डेटा कंप्रेस हो गया। एग्रीड? थैंक यू। Hope you all have understand this lecture. These are the basic two problems of greedy algorithm, that is activity selection problem and Huffman encoding. In next lecture, I will discuss about the fractional knapsack, job scheduling problem and traveling salesman. ठीक है? And I will also mark this that activity selection problem is one of the most important problem from the university perspective. Kindly go through it very seriously. Thank you.